وہ اپنے تینوں سرکل لگاتا تو وہ واک کرتے ہوئے اس کے ہاتھ میں تین یا دو ایکلیئر ہوتے تھے، چاکلیٹ ہوتے تھے، تھک چاکلیٹ، جنہیں وہ انجوائے کرتا، کھاتا جاتا اور ساتھ میں وہ واک کرتا چلا جاتا۔ تو اس نے اپنا جب وہ پارک میں گیا اور اس نے تھیلی کے اندر جو اس نے ایکلیئر قریبی دکان سے لی تھی، چاکلیٹ کی شاپ سے وہ لی، اور وہ ایکلیئر لے کر وہ اس کو کھاتا ہوا جا رہا ہے، اور ابھی وہ جب اپنے پہلے چکر کے اختتام پر پہنچا تو ایک بھکاری اسے نظر آیا، جو بھکاری اس سے کچھ مانگ رہا ہے، کہتا ہے گیو می سم تھنگ، گیو می سم تھنگ۔ اس نے اس کو غور سے دیکھا اور اس کو جھٹک کر چلا گیا، پور پاور پور پیپل، اور وہ اپنا ایکلیئر انجوائے کرتا ہوا جا رہا ہے۔ رستے میں جب اس نے اپنی تھیلی کے اندر ہاتھ ڈالا اور دوسرا ایکلیئر نکالنے لگا تو اچانک اس کے پیر کو ٹھوکر لگی، اور ٹھوکر لگنے سے جو اس کے ہاتھ میں ایکلیئر تھا وہ نیچے زمین پر گر پڑا اور نیچے کیچڑ تھا۔ اس نے جلدی سے ایکلیئر کو اٹھایا لیکن وہ کیچڑ میں جو تھا وہ لت پت ہو چکا تھا۔ اس نے اس کو جھٹکا، تھوڑا سا صاف کیا، کھانے کی کوشش کی، لیکن اس میں مٹی اور وہ پانی اتنا لگا ہوا تھا اس کا کھانے کو دل نہیں کیا، وہ پھینکنے لگا۔ اچانک اسے خیال آیا، او دیٹ پور پرسن، وہ مانگ رہا تھا۔ تو وہ گیا اور گزرتے ہوئے اس نے وہ جو ایکلیئر تھا، وہ بھکاری نے پھر ہاتھ بڑھایا اور کہا گیو می سم تھنگ، اور اس نے وہ بڑے فاتحانہ انداز میں مسکراتے ہوئے وہ جو ڈرٹی گندا ایکلیئر تھا، چاکلیٹ تھا، وہ اس نے اس غریب آدمی کو دیکھا، انجوائے اٹ، اور مسکراتا ہوا آ کر اپنے آفس میں بیٹھ گیا۔ رات کو اس نے خواب دیکھا۔ خواب دیکھتا ہے کہ وہ ایک انتہائی پرتعیش اور بڑے مہنگے ریسٹورانٹ میں بیٹھا ہوا ہے، ہر طرف رش ہی رش ہے، دل دھرنے کی جگہ نہیں ہے، ویٹر اینڈ ویٹریسز آر رننگ، اور کوئی بھی اس کی طرف توجہ نہیں دے رہا۔ اب وہ اس بات پہ بڑا پریشان ہوا کہ بھائی میں تو اپنے آفس کا مینیجر ہوں اور میرے پاس اتنی اتھارٹی ہے، پاور ہے، میرے نیچے اتنے لوگ کام کرتے ہیں، اور یہاں مجھے کوئی پوچھ نہیں رہا، میری ویلیو ہی نہیں ہے کوئی بھی۔ الٹیمیٹلی اس نے مینیجر کی طرف اشارہ کیا، اس کو مینیجر نظر آتا، اس نے کہا جی مینیجر پلیز کم اوور ہیئر، اور میں آئی ایم ہیئر، آئی ایم اے ریسپیکٹیبل کسٹمر، اور کوئی میری طرف توجہ نہیں دے رہا، نو بڈی از ٹیکنگ مائی آرڈر۔ تو اس نے کہا جی کہ اچھا میں دیکھتا ہوں کیا ہے۔ وہ گیا اور تھوڑی دیر کے بعد ایک ویٹرس اس کے لیے ایک ٹرے لے کر آئی، جس میں بڑے خوبصورتی سے ٹرے جو تھا وہ کور ہوا ہوا اور بہت عالیشان طریقے سے وہ بیٹھا، اس نے اپنا نیپکن سیٹ کیا، اپنی چھری اور کانٹا پکڑا، اور جیسے ہی اس نے اپنے ٹرے کا، اپنی پلیٹ کا ڈھکن اٹھایا تو وہ گرتے گرتے بچا۔ اس ٹرے کے اندر وہی ڈرٹی پیس آف ایکلیئر اور پیسٹری جو تھی وہ اس کے اندر تھی۔ وہ ایک دم غصے سے کھڑا ہو گیا اور اس نے شور مچا دیا، اس نے کہا آئی وانٹ مائی منی بیک، آپ لوگ میری بےزتی کر رہے ہیں، اور یہ ڈرٹی ایکلیئر مجھے کیوں دیا گیا ہے، اور میں رپورٹ کر دوں گا، اور یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا۔ تھوڑی دیر کے بعد مینیجر دوڑا دوڑا آیا، اس نے کہا ایکسکیوز می سر، پلیز ڈونٹ میک اے نوائس ہیئر، یو آر رائٹ ناؤ ان اے ہیونلی ریسٹورینٹ۔ اور ہیونلی ریسٹورینٹ میں ہم نے یہاں پر دیکھا ہے کہ آپ کا جو اکاؤنٹ ہے، ہم یہاں پر کوئی نئی چیز سرو نہیں کرتے، آپ کے اکاؤنٹ میں ہم نے دیکھا کہ آپ کے پاس صرف ایک ہی آرڈر ہے جو آپ نے آنے سے پہلے یہاں بھیجا ہوا تھا، اور وی ہیو اونلی اے ڈرٹی پیس آف ایکلیئر فار یو، جو ہم آپ کو دے رہے ہیں۔ آپ کو یہاں پر صرف یہی چیز مل سکتی ہے، باقی آپ کے اکاؤنٹ میں یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے۔ دس اسٹوری ریمائنڈ اس میرے عزیزو، آج کا جو فرسٹ ریفرنس پڑھا گیا ہے، جس میں خداوند بنی اسرائیل کو، اور خاص طور پر ان بچوں کو جو 40 سال کی بیابان میں پیدا ہوئے ہیں، انہوں نے تورات نہیں سنی، انہوں نے خدا کے احکام نہیں سنے، اور ان کو کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ تعلیم نہیں ملی، کیونکہ وہ 40 سال بیابانی آبادگی میں رہے ہیں۔ اب وہ اس پرومس لینڈ میں جا کر سیٹ ہونے والے ہیں، جس کا پرومس، جس کا وعدہ خدا نے ان کے آباؤ اجداد سے مصری غلامی سے نکالتے وقت کیا تھا۔ اب یہ جو نسل ہے جو پیدا ہوئی ہے، ان کو خدا جو ہے جب مختلف احکام دوبارہ ریمائنڈ کراتا ہے، استثناء کا مطلب ہے جس کا اردو ترجمہ بک آف ڈیٹرانومی کا کیا گیا ہے، تثنیہ شرع مطلب شریعت کی دہرائی کر دینا، ریپیٹ دا لا۔ سو خدا نے موسیٰ کے وسیلے سے ان کو اپنے جو احکام تھے وہ دوبارہ یاد کروائے اس نسل کو جو 40 سال پہلے بیابان میں پیدا ہوئی ہے۔ اب استثنا جو ڈیٹرانومی کی کتاب ہے، اس میں بہت سارے احکامات ہیں، لیکن آج کی شام میں صرف آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جی، مور دین ٹائتھ، 10ویں سے دسونت سے بہت زیادہ۔ اب ایک بڑا مسکنسپشن ہے جب ہم اولڈ ٹیسٹامنٹ کے کووننٹ کی طرف جاتے ہیں، اور وہاں پر لوگ یا پادری صاحبان جب کبھی پیسے کی، ہدیے کی، نذرانے کی بات آتی ہے تو ہم صرف دے یکی پر رک جاتے ہیں کہ جی دے یکی کا حکم تھا۔ ایسا نہیں تھا، دے یکی واز اونلی ون آف دا آپشن among many other commands
to contribute in the community and in God's work. मसलन ये जो 14वां चैप्टर आपके सामने पढ़ाया गया है, 14वां और 15वां बाब जो है, चैप्टर 14 एंड चैप्टर 15, अगर आप इसका कॉन्टेक्स्ट देखेंगे तो यहां पर जो पहली चीज है वो 22वें, जब खुदा ने उनको डाइटरी जो थे, जब उनके अहकाम दिए बनी इसराइल को, तो 14वें बाब शुरू होता है उनका कि आपने क्या खाना है, किस चीज को नहीं खाना, तो ये उनको दिए गए। लेकिन उसके बाद जब आप देखेंगे 22वीं आयत में उनको जो कमांड आई है, 22वीं आयत में क्या लिखा है, तू अपने गल्ले से जो साल बसाल तेरे खेतों में पैदा हो दै यकी देना। ओके जी। सो यहां पर एनुअल, जिस तरह आज मैंने जिक्र किया है कि एकेडमिक, नॉट एकेडमिक, एकेडमिक कैलेंडर बंद हो रहे हैं लेकिन फाइनेंशियल कैलेंडर खुल गए हैं इस महीने के अंदर। सो जो फाइनेंशियल फिजिकल कैलेंडर है वो यहां पर खुदा ने कहा जी कि तेरे खेतों में जो साल के साल तूने क्या निकालनी है, दै यकी, एनुअली। और ये किस में से निकलेगी, ये जो तेरे खेत में पैदावार होगी, ये पहला है, ये पहला लेवल है, फर्स्ट लेवल है जो दै यकी का दिया गया है, जिस पर 10th बताया गया। ठीक है जी। अच्छा, ये किस पर है, आपकी आमदनी पर, आपके गले पर, जो आप अपने लिए पर्सनली, अपने घराने, अपने खानदान के लिए आप जो करते हैं, दैट इज अबाउट कमांड अबाउट दैट। ठीक है। अच्छा, उसमें आप देखेंगे कि खुदावंद कहता है जी तूने यहां पर देना है, और अगर तू दै यकी निकाल कर उस जगह ना पहुंचा सके जहां खुदावंद ने हुक्म दिया है, तो साल के साल से बांध कर रखना। एंड देन पूरे साल के एंड में जब तू जाए ईद मनाने के लिए, तो वहां पर तू अपने घराने समेत खुशी मनाना, और उस दै यकी से, और ना सिर्फ अपने लिए। इंटरेस्टिंग, देखिए दै यकी का पर्पस क्या है, बल्कि अगर आप 27 वर्ष देखेंगे वहां लिखा हुआ है, और लावी को, जो तेरे फाटकों के अंदर है, जो लिविटिकल्स हैं, जो लावियों का घराना है, जो खिदमत करते हैं हैकल में, तूने उनको नहीं भूलना, क्योंकि उनका तेरे साथ कोई हिस्सा या मिरास नहीं है, मैंने उनको जमीन नहीं दी है। 11 कबीलों को यह बोला है कि तुमने लावियों के कबीले को संभालना है, उनकी तुमने परवरिश करनी है, उनकी सपोर्ट करनी है। सो दिस इज द फर्स्ट लेवल ऑफ टाइथ, दै यकी, जो कि साल की आमदनी पर है। दूसरा लेवल 28वीं आयत, फिर लिखा है 3 वर्ष के बाद तो तीसरे वर्ष के माल की सारी दै यकी। इंटरेस्टिंगली, पहला साल के साल, तीसरे साल में 3 वर्षों की सारी दै यकी। फिर इंटरेस्टिंगली सेकंड लेवल आ गया। ठीक है जी। अपने फाटकों के अंदर इकट्ठा करना, और ये दै यकी किनको जाएगी, याद रखिएगा, पहली दै यकी जो साल के साल है वो आपके लिए है और लावियों के लिए है। ठीक है। ये दै यकी किनको जाएगी, ये जो सेकंड लेवल ऑफ दै यकी है विद द थर्ड ईयर, वो जाएगा। तब लावी, अगेन लावी इंक्लूड हुए। क्यों इंक्लूड हुए, क्योंकि लावियों को जमीन नहीं दी गई थी, उनको कुछ नहीं दिया गया था, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ फुल टाइम मिनिस्ट्री करनी थी। ठीक है। जिसका तेरे साथ कोई हिस्सा या मिरास नहीं, और परदेसी ऐड हो गए इसमें, यतीम भी ऐड हो गए, और बेवा औरतें भी ऐड हो गई, जो तेरे फाटकों के अंदर, यानी जो तेरी टेरिटरी के अंदर हों, आपका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, आपके चर्च, आपकी कलीसिया, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट आज का निर्णय। मैं अभी जब इसकी एप्लीकेशन पर आऊंगा बताऊंगा, लेकिन फाटक रिप्रेजेंट योर सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, योर वर्शिप कम्युनिटी। वो आए और खाकर शेर हों, ताकि खुदावन तेरा खुदा तेरे सब कामों में, सब कामों में, सिर्फ छोटे कामों में नहीं। मैं आज जो आपको चैलेंज देना चाहता हूं जी, वो सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज ये है कि वाई आवर इंडियन पाकिस्तानी कम्युनिटी इज ऑलवेज स्टिंजी। ये इतने कंजूस क्यों हैं, ये इतने गरीब क्यों हैं, ये जितने गरीब पीछे छोड़कर आते हैं उससे ज्यादा गुर्बत यहां में रहते हैं, और फिर उनके दिल बंद हो जाते हैं। वाई, देयर इज द रीजन, क्योंकि हम खुदा के कलाम को सीरियसली नहीं लेते कंसर्निंग आवर फाइनेंशियल हेल्थ। दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो क्या करना है तूने, खुदावन तेरे सब कामों में जिनको तू हाथ लगाए, तू जिस जगह एंगेज होगा, तू जिस बिजनेस में हाथ डालेगा, तू जिस कारोबार में हाथ डालेगा, तू जहां नौकरी करेगा, खुदावन क्या करेगा, तुझको बरकत बख्शेगा। सो दैट्स द प्रॉमिस टाइज with responsibility of a financial income what we have। ठीक है जी। सो पहला साल, पहला लेवल आपने देखा दै यकी का, फिर सेकंड लेवल आपने देखा है, तीसरा, उसके बाद है 3 साल के बाद अब 7वां साल आ गया, सबैटिकल ईयर। ठीक है। ये जो कहता है ना सिर्फ दै यकी, दिस इज अंडरस्टैंड द दै यकी, द डायनामिक्स ऑफ टाइथ। हर 7 साल के बाद देखें, हर चीज डिग्री सुपरलेटिव होती जा रही है। पहला साल, तीसरा साल, एंड देन 7th ईयर। हर 7 साल के बाद अब ये छुटकारा है। दिस इज नॉट ओनली दै यकी, दिस इज डिलीवरेंस। इसका सब्त के साथ ताल्लुक है। तो छुटकारा देना, और छुटकारा क्या देगा, अगर तूने अपने किसी पड़ोसी को कर्ज दिया हो, यानी अपने अपने भाई को जो आपके फेथ ट्रेडिशन के अंदर है कर्ज दिया है, तो वो कर्ज 7वें साल में क्या हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा, वाइप अप हो जाएगा, आप क्लेम नहीं कर सकते। देन
اور اگر تو نے اس کا مطالبہ نہیں کرنا، نہ تو مانگ سکتا ہے اور نہ تو چھوڑ سکتا ہے۔ اور اگر مطالبہ نہ کرے کیونکہ خداوند کے نام سے، انڈر دا نیم آف دا لارڈ، تو اس کا چھٹکارے کا کیا ہو گیا ہے، اعلان ہو گیا، اٹس اے پبلک ڈیکلریشن، ٹھیک ہے جی۔ پردیسی سے تو اس کا مطالبہ کر سکتا ہے جی۔ کہ اٹس انٹرسٹنگ ڈفرنس بٹوین دا ڈیمارکیشن لائن بیچ میں کیا ہے، جو یہودی ہوگا، جو تیرا بھائی ہوگا، جو تیرا ہم فیت ہوگا، جو تیرا بلڈ لائن میں سے ہوگا، جو تیرے ورشپ کمیونٹی میں سے ہوگا، اس کا ٹوٹلی معاف ہو جائے گا 7ویں سال میں۔ لیکن پردیسی جو اس کے اندر نہیں ہے تو مطالبہ کر سکتا ہے، لیکن جو کچھ تیرے بھائی پر آتا ہو تو دست بردار، تو اس پر کلیم اپنا ہاتھ نہیں رکھ سکتا، اٹ ول بی گان۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی چوتھی آیت میں کیا لکھا ہوا ہے، تیرے درمیان کوئی کنگال نہ رہے۔ آج پوری دنیا میں ہم حیران ہوتے ہیں جی کہ پوری دنیا کے موسٹ انٹیلیجنٹ پیپل، پوری دنیا کی اکانومی، پوری دنیا کا ٹریڈ سسٹم، پوری دنیا کے اندر ابھی بھی دیکھیں، پورے امریکہ ورلڈ پاور ہوتے ہوئے اگر ایران اور خلیجی ممالک کی جنگ ہو رہی ہے تو فار دا سیفٹی اینڈ سیکیورٹی آف دا اسرائیل، آج 21ویں صدی کے اندر بیٹھے ہوئے ہم اپنے ارد گرد حالات دیکھ رہے ہیں۔ دا ریزن از کمیونل انڈرسٹینڈنگ۔ وی، ہم، برادری، کمیونٹی، انڈیویجولزم نہیں ہے، انفرادیت نہیں ہے، سب کو کیا مل رہا ہے، کوئی تیرے درمیان کنگال نہ رہے، کیونکہ خداون تجھ کو، امریکہ میں آ گئے ہو، انگلینڈ میں آ گئے ہو، یورپ میں آ گئے ہو، کینیڈا میں آ گئے ہو، بٹ یو اسٹل اسٹنجی، تو اسٹل کنگال ہے، کیونکہ ہم نے غریبوں کو اور خداون کے کلام کا جو پیٹرن ہے فائنینشیل بلیسنگ کا، وی ہیونٹ فالوڈ دیٹ۔ اس ملک میں ضرور برکت بخشے۔ سو برکت از ٹائی with the financial as a spiritual discipline، جسے خود خداوند تیرا خدا میراث کے طور پر تجھ کو قبضہ کرنے کو دیتا ہے جی، بشرط یہ کہ دیکھیے کنڈیشن آ گئی ہے، شرط کیا ہے، تو خداوند اپنے خدا کی بات مان کر اوبیڈینس کے ساتھ، ود اوبیڈینٹ ہارٹ مان کر، تو کیا کر، ان سب احکام پر کیا کر، چلنے کی احتیاط رکھے جو میں آج تجھ کو دیتا ہوں جی۔ وائی؟ کیونکہ خداوند تیرا خدا جیسا اس نے تجھ سے وعدہ کیا ہے۔ سو جی یاد رکھیے گا، صرف ایک چیز لا تبدیل ہے اس چینجنگ ورلڈ کے اندر۔ آپ دیکھیں گے دنیا کے حالات کتنی تیزی سے بدلتے ہیں، ادھر رات کو کچھ خبر آتی ہے، دن کو کچھ خبر آ رہی ہوتی ہے، ادھر ہم شام کو کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں، دن میں ہمارے سامنے ہمارے پلان کچھ اور چینج ہو جاتے ہیں، 12 گھنٹے جیسے نہیں ہوتے۔ ون تھنگ از انچینجیبل ان دس فاسٹ پیس چینجنگ ورلڈ، خدا کی ذات اور خدا کا کلام لا تبدیل ہے، باقی سب کچھ بدل رہا ہے، رشتے ناتے، جوڑیاں، دوست، احباب، آپ کے ساتھ بیٹھنے والے، کھانے پینے والے، ہنسنے والے، ایوری تھنگ از چینجنگ، لوگوں کے رویے بدل رہے ہیں، اولاد کا والدین کے ساتھ رویہ بدل رہا ہے، کلیسیا کے لوگوں کے ساتھ رویے بدل رہے ہیں، ایوری تھنگ از چینجنگ، ون تھنگ از انچینجیبل وچ از گاڈس ورڈ اینڈ گاڈس پرومسز۔ برکت بخشے گا، تو بہت سی قوموں کو قرض دے گا پر تجھ کو ان سے قرض لینا نہ پڑے گا۔ آج اپنے دلوں پر اور اپنے پاکٹس پر ہاتھ رکھ کر دیکھیں، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو قرضوں کے نیچے دبے ہوئے، سو مینی پیپل، بہت سارے۔ وائی؟ کیونکہ ہم نے خدا کی دی ہوئی احکام اور ان پر عمل نہیں کیا ہے۔ تو بہت سی قوم پر حکمرانی کرے گا۔ آر وی ان اے لیڈرشپ پوزیشن ان دا ورک پلیس اور وٹ ایور وی آر ڈوئنگ، آر وی بلیسڈ اور ناٹ؟ اور بلیسنگ کا ایک بہت بڑا تعلق جو ہے وہ فائنینشیل ہیلتھ کے ساتھ ہے، اور فائنینشیل ہیلتھ از ٹائی ود یور اسپرچل ہیلتھ۔ اب اسپرچل ہیلتھ کے لیے جو پرومس کیا ہے خدا نے، نمبر 1 اگر آپ پرومس آپ دیکھیں گے وہ کیا ہے، تو سائیکالوجی آف گیونگ دیکھیے گا جی میرے چیزوں، جو سائیکالوجی خدا نے اس کے اندر ڈیل کی ہے اپنے لوگوں کے ساتھ وہ کیا ہے۔ نمبر 1 اگر آپ 7ویں آیت دیکھیں گے، وہاں لکھا ہوا ہے جو ملک خداوند تیرا خدا تجھ کو دیتا ہے۔ نا اب اس کو اپنے آپ کو فریم میں رکھ کر دیکھیے گا کہ جو سٹی آف آرٹیشیا، نارواک، لاس اینجلس، کیلیفورنیا، یو ایس اے، پوری دنیا کے اندر خدا نے آپ کو جو جگہ، جو ٹیریٹریز میں خدا نے آپ کو رکھا ہے، اگر اس میں کہیں، اگین یور ٹیریٹری، تیرے پھاٹکوں کے اندر، تیرے کلیسیا کے اندر، تیرے ورشپ کمیونٹی کے اندر، تیرے انفلوئنس کے اندر، تیرے بھائیوں سے کیا مراد ہے جی؟ پیپل دوز ہو شیئرڈ فیتھ وتھ یو، جو آپ کے ساتھ اپنا ایمان شیئر کرتے ہیں جی۔ بھائیوں میں سے کوئی مفلس ہو، کوئی غریب ہو، کم کماتا ہو، کم کھاتا ہو،
और तू उसके सामने वकेशन भी करे, तू उसके सामने जो है अपने पार्टियां भी करे, तू उनके सामने अपने डिनर भी करे, तू उनके सामने अपने नए नए घर भी खरीदे, सारा कुछ करे, और अपने काम करने के लिए तेरे पास सब कुछ हो, पर जहां पर वर्शिप कम्युनिटी की बात आ रही है, जहां पर तेरे शेयर्ड फेथ लोगों की बात आ रही, तू अपने उस मुफलिस भाई की तरफ से ना अपना दिल, हार्ट सख्त करना, डोंट हार्डन योर हार्ट, और ना अपनी मुट्ठी, हैंड, ना तेरी हैंड मुट्ठी बंद हो। सो योर हार्ट पहले आया है, याद रखिएगा जी, दिल जो है वो पहले आया है। तो जो साइकोलॉजी है वो अंडरस्टैंडिंग ये है कि पहले हमारा दिल जो है वो खुदा के कामों और खुदा के लोगों और खुदा की खिदमत की तरफ से क्या होता है, पहले वो सख्त होता है। जब दिल सख्त होता है, देन आवर हैंड्स वुड नॉट ओपन, फिर हमारे हाथ नहीं खुलते हैं। तो खुदा क्या फरमाता है कि तू अपनी साइकोलॉजी, क्योंकि जो तेरा इंटेलेक्ट है, जो तेरा सोचने का अंदाज है, जैसे मैंने कल के परसों शायद आप लोगों के साथ एक वो अपने टाइटल जो था वो शेयर किया था कि यू ब्रिंग द स्मेल ऑफ एनवायरमेंट वेयर यू स्पेंड द होल डे। अब स्मेल से क्या मुराद है? आप दिन भर जिन लोगों के दरमियान उठते बैठते हैं, जिस किस्म के बातें सुनते हैं, जिस किस्म का मीडिया आपके दिमागों के अंदर जा रहा है, जिस किस्म के रील्स आप देख रहे होते हैं, जिस किस्म के कल्चर में आप हैं, जिस किस्म के लोगों के साथ हैं जो कि नॉन बिब्लिकल है, अगर वो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक नहीं है, खुदा के मुताबिक नहीं है, तो आप वहां की गंदी बदबू अपने दिमागों, अपने सोचों में लेकर खुदा के घर में और खुदा की कलीसिया के साथ एंटर होते हैं, एंड यू ट्राई टू अप्लाई दैट एनवायरमेंटल स्मेल इनटू गॉड्स प्रेजेंस एंड गॉड्स पीपल। खुदा ने से मना किया है, तू अपने मुफलिस भाई की तरफ से ना अपना दिल और ना अपनी मुट्ठी बंद करना। आठवीं आयत क्या कह रही है? बल्कि उसकी एहतियाज रफा करने के जो चीज उसे दरकार हो, उसके लिए तू उसे जरूर फराख दस्ती, उर्दू में लिखा हुआ है, मैं आपके सामने इंग्लिश में पढ़ता हूं कि यहां पर लिखा हुआ है कि तू उसको जो सदका है, जो हायरार्की है, तू उसे खुले दिल से देना। ठीक है जी, खुले दिल के साथ। यहां इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपकी क्वांटिटी कितनी है। So God is no more interested in the quantity. God is more interested in the quality, in the motive behind that. इसके पीछे जो आपका दिल है वो कहां पर है। यीशु ने साफ कहा था कि जहां तेरा दिल होगा वहां तू माल भी लगाएगा, या इसको रिवर्स कर ले, जहां तेरा माल होगा वहां तू दिल भी लगाएगा। वेयर इज आवर हार्ट? अगर खुदा के लोगों के लिए, खुदा की खिदमत के लिए, खुदा की बादशाही के लिए, खुदा की कलीसिया के लिए, खुदावंद के जलाल के लिए और खुदावंद की बरकतों के लिए हमारा दिल है मेरे जीजो, फिर ना हमारे दिल सख्त होंगे, ना हमारे हाथ जो हैं वो सख्त होंगे। सो 11वीं आयत में क्या है, 9वीं आयत में क्या लिखा है जी? कि तू उसे क्या करना है? तूने अपने लोगों के लिए उसे खोल कर रखना है। जो एक बड़ी वजह है जी, वाई पुअर, बड़ी इंपॉर्टेंट आयत है, मैं आगे इसको डिटेल करूंगा कि इस रेफरेंस में से दो आयतें न्यू टेस्टामेंट में इसी कोटेशन डायरेक्ट आई हैं, जिसको मैं बाद में कंक्लूड करूंगा। सो क्या करना? फराख दस्ती से उसे कर्ज देना, तो उसे दे देना। खुद फर्ज करें कोई कहता है जी कि छठा साल आ गया, ठीक है, और छठे साल में कोई कर्ज लेने आ गया, और आपको पता है जी हो अगर मैंने छठे साल में कर्ज दे दिया, अगला 7वां साल है, मुझे माफ करना पड़ेगा। तो वो वहां पर कैलकुलेशन शुरू हो गई है। ठीक है जी, जो क्या हो गई है? कैलकुलेशन, और लोग मैथ करना शुरू हो जाते हैं जी, और जी इसको काउंट करना शुरू करें, कैलकुलेशन करना शुरू करें। लेकिन खुदावन फरमाता है जी, नो, दिस इज अ सैबत, 7वां साल है, और तुम्हारा हाथ और तुम्हारा दिल, योर हार्ट एंड योर हैंड शुड बी ओपन, और जो सदका है, जो चैरिटी है, जो मदद है, दैट शुड बी गो। रीजन उसकी क्या है? रीजन उसकी ये है मेरे जीजो कि जिस तरह हमारे दिल खुलेंगे उसी तरीके के साथ हमारे हाथ खुलेंगे, एंड देन व्हेन गॉड सी द हार्ट, गॉड ओपन द हेवंस फॉर यू। तो दिस इज द कॉस्मिक बैलेंस जिसे खुदा ने रखा हुआ है। कॉस्मिक बैलेंस क्या है? स्पिरिचुअल रैल्म के अंदर, जमीन के ऊपर, जब आपके हाथ और आपके दिल जब खुलेंगे, गॉड ओपन द हेवन फॉर यू। ये एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअल कॉस्मिक बैलेंस है जिसे खुदा ने अपने कलाम के वसीले से दिया है। एंड देन जो आप देखेंगे कि इसमें मैं जो आयत लिखना चाहता हूं, 11वीं आयत जब आप देखेंगे वहां क्या है? 11वीं आयत बड़ी इंपॉर्टेंट है, लिखा हुआ है, और चूंकि मुल्क में कंगाल सदा पाए जाएंगे। दैट्स इंटरेस्टिंग। आप कहेंगे ओके, तो ये जो पॉवर्टी एलिमिनेशन के प्रोजेक्ट्स बनते हैं, गुर्बत को मिटाया जाए, कुछ तो गुर्बत को नहीं, पाकिस्तान इंडिया जैसे मुल्क में गरीबी मिटा देते हैं, तो गुर्बत मिटाने का जो प्रोसेस है, तो पहली बात याद रखिएगा जी, गुर्बत विल नॉट एंड।
गरीब गुरबा हमेशा रहेंगे. दिस इज डिक्लेयर बाय द लॉर्ड. इसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि देयर शुड बी अ कॉस्मिक एंड सोशल एंड अ नेचुरल बैलेंस इन द सोसाइटी. जिनके पास है, जिनके पास वसाइल हैं, दे शुड गिव टू द पुअर. और जिन जो जो गरीब हैं, जो गुरबा हैं, वो सोसाइटी के अंदर अमीर लोगों के, जो रिसोर्सफुल लोग हैं, वो उनके दिलों और उनके हाथों को ओपन रखते हैं. सो क्या है कि तेरे दिल को बुरा ना लगे और क्या हो, उस मुल्क में कंगाल सदा पाए जाएंगे, इसलिए मैं तुझे हुक्म देता हूं. दिस इज नॉट ऑप्शनल. याद रखिएगा जी, दिस इज नॉट ऑप्शनल कि जी मैंने देना या नहीं देना. नो नो नो, इट इज अ कमांड. लिखा है मैं तुझे हुक्म देता हूं. दिस इज अ डायरेक्ट कमांड. तू अपने मुल्क में अपने भाई यानी कंगालों और मोहताजों के लिए अपने हाथ क्या रखना? खुले रखना. हाथ खुले रखना जी. कॉस्मिक बैलेंस रखना, ताकि खुदावंद का आसमान तेरे लिए क्या रहे? खुला रहे जी. सो खुदावंद स्पिरिचुअल रैम को ओपन करता है जब हम खुदावंद के कलाम को फॉलो करते हैं. एंड देन द अल्टीमेट ब्लेसिंग, जैसे मैंने वादा देखा जी, वादा क्या है? खुदावंद तुझे बरकत देगा. बरकत क्यों है? क्योंकि जब आप अपने दिलों को, अपने हाथों को खुदावन की खिदमत और खुदावन के काम, खुदावन के लिए अपने खोलते हैं, मेरे अपने पॉकेट्स को खोलते हैं, अपने पर्सेस को खोलते हैं मेरे जीजो, देन वी डिवेल इन गॉड्स प्रेजेंस इन अ वे कि जो वी बिकम अ वेसल फॉर डिवाइन ग्रेस. रीजन इसकी क्या है? क्योंकि बाइबल मुकद्दस में दर्ज है कि खुदा ने इंसान को अपनी सूरत, अपने शबीह पर क्रिएट किया. चूंकि खुदा हमें लेविशली देता है, चूंकि खुदा की जात, दुनिया के अंदर जो गिफ्ट्स हैं खुदा ने जो दिए हैं हमें, चाहे वो सेहत का है, चाहे वो रुपए पैसे का है, घर बार का है, खानदान का है, गाड़ियों का है, वट एवर सोशल स्टेटस, जो भी खुदा ने हमें दिया है, इट इज द ब्लेसिंग ऑफ गॉड. चूंकि खुदा हमें लेविशली देता है, तो जब हम नीचे उस चीज को इमिटेट करते हैं, देन वी बिकम अ वेसल फॉर डिवाइन ग्रेस. तो हम खुदा का जो इलाही फजल है, हम उसका चैनल और उसका बर्तन बन जाते हैं. अब कहेंगे जी कि ये तो बात हो गई पुराने यादनामे की, इसराइलियों के लिए, यहूदियों के लिए, तो मेरा इससे क्या लेना देना भाई यार? न्यू टेस्टामेंट हमें तो दया यकी का हुक्म ही नहीं है. न्यू टेस्टामेंट में बड़े सारे लोग ये जो है वो आर्गुमेंट करते हैं जी दया यकी तो यहूदियों के लिए थी. जैसे मैंने पहले एपिसोड में बताया जी, दया यकी, आपके पास जो दया यकी का कॉन्सेप्ट है, दैट वाज ओनली फॉर योर एनुअल फूड और एनुअल जो गल्ला आपके घर में आ रहा है. आपने तो अभी 3 वर्ष वाला तो आप पर अप्लाई नहीं होता, और फिर 7वें साल वाला भी तो आप इसमें शामिल नहीं हो सकते अगर आप ये कहते हैं. सो हाउ इज इम्प्लीमेंट इन टू द चर्च टुडे, और मेरा और आपका से क्या लेना देना है एज अ चर्च? तो पहली चीज, ये जो रेफरेंस है 15वें बाब की 7 से 11 आयत जो है मेरे जीजो, ये नए अहद में 2 जगह पर डायरेक्ट कोट आई है. पहली चीज देखते हैं जी, पहले कहां पर कोट आई है. पहले कोटेशन इसकी आई है, अगर आप खोलिएगा, पौलुस रसूल ने इसे इस्तेमाल किया है, 2 Corinthians chapter 9 verse 7. जरा मेरे साथ खोलिएगा. करंथस की कलीसिया के नाम, पौलुस रसूल का दूसरा खत है, और उसका उसका 9वां बाब जब आप खोलेंगे तो आपको इसकी जो है वो डायरेक्ट आपको इंप्लीमेंटेशन नजर आएगी जी. ओके जी. तो क्या है जी, जब आप इसको पढ़ते हैं जी, 9वें बाब की 7 आयत, 2 Corinthians, करंथस का नाम, पौलुस रसूल का दूसरा खत है, और उसकी 7वें आयत में देखिए क्या लिखा हुआ है. और यहां पर पौलुस रसूल जो एग्रीकल्चरल सोइंग एंड रीपिंग का कॉन्सेप्ट है उसको पेश कर रहे हैं हमारे फाइनेंशियल सोइंग एंड रीपिंग के साथ. क्या है? छठी आयत से पढ़ने लगा हूं, 2 Corinthians 9 verse 6. लेकिन बात यह है, पौलुस रसूल करंथस की कलीसिया को समझा रहे हैं, जो थोड़ा बोता है. अब इंडियन पाकिस्तानी चर्च, स्पेशली आर्टिशिया सिटी चर्च, बाकी दुनिया की कलीसियां जो सुन रही हैं या जो रिकॉर्डिंग देख रही हैं, बात यह है, पौलुस कह रहे हैं जी आपको, जो थोड़ा बोता है, यानी जो थोड़ा बचाता है, वो थोड़ा काटेगा. तो जितना आप बोएंगे इन द फाइनेंशियल realm ऑफ गॉड्स डिवाइन बैंकिंग सिस्टम, वो उतना ही आपके अकाउंट में जाएगा. रिमेंबर द स्टोरी ऑफ द डर्टी पीस ऑफ एक्लेयर और द पेस्ट्री. ठीक है जी. और जो बहुत बोता है, क्या करेगा? वो बहुत काटेगा. हाउ वी आर डिपॉजिट एंड क्रेडिट. ठीक है जी. जिस कदर, ये 7वीं आयत कोड हो रही है जी, इस्तिस्ना जो मैंने आपके हवाला पढ़ा ना 15वें बाब की आयत से, ये आई है, जिस कदर हर एक ने अपने दिल में ठहराया है. नाउ वी आर मूविंग बियॉन्ड टाइथ. ना पहले साल की दया की, ना तीसरे साल की दया की, ना 7वें साल की दया की. क्या आई है जी? जिस कदर हर एक ने अपने दिल में ठहराया. पहला प्रिंसिपल है, नॉट अबाउट द
money amount, it is about attitude, not about how, why are you giving. The important खुदा का जो मेजर कंसर्न है वो है आपके दिल के साथ, पीछे मोटिव्स के साथ है। हर एक ने अपने दिल में ठहराया है उसी कदर दे, और कैसे दे अमाउंट नहीं बताया यहां पर, सुनिएगा जी, ओके। आप चाहे $1 डालें, चाहे आप 50 सेंट का सिक्का डालें, इससे कोई गलत नहीं। चाहे आप $20 का चेक लिखें, चाहे आप $50 का लिखें, चाहे आप महीने का कुछ भी ना दें और तुसी जिमें उंदे ऊंजी टुट जाओ, चर्च में कुछ भी ना दें, लेकिन what God is remembering, God is looking at your heart, not the amount, not the amount on the check, heart। ना द्रेक करके और ना लाचारी से। Why? आगे, because your attitude reflecting your relationship, your presence and your dwelling with the God, क्योंकि खुदा खुशी से देने वाले को अजीज रखता है। यहां पर लफ्ज दोस्त नहीं आया, यहां पर कुर्बत, इंटीमेसी है, इंटीमेसी है, जो डिवेलिंग है, जो प्रेजेंस है खुदा की, दैट इज आल्सो थ्रू योर हैंड्स, थ्रू योर हार्ट्स। क्योंकि खुदा खुशी से, याद रखिएगा जी, एटीट्यूड इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। आप चर्च किस एटीट्यूड के साथ आते हैं, आप कलीसिया में लोगों के साथ किस एटीट्यूड से मिलते हैं, आपका खुदा के लोगों के साथ रवैया कैसा है, योर एटीट्यूड ऑलवेज मैटर, एंड योर एटीट्यूड रिफ्लेक्ट through your participation in the church, through your financial contribution in the church, and through your time and talents in the church कि आप कितना दे रहे हैं। That shows always your heart toward God। और याद रखिएगा, कलीसिया को, लोगों को, सबको नजर आ रहा होता है कि आपकी टाइज और आपका दिल कहां पर है। Everybody knows that। इसलिए पहली चीज, पौलुस रसूल ने इस आयत को क्या किया है, कोट किया है जी, और यहां पर he is aligning our percentage with our heart and with our quality, not with the amount over percentage। ठीक है जी। नंबर 2, पौलुस रसूल यहां पर जो दूसरा असूल बता रहे हैं वो क्या है जी, इफ द अमाउंट आई गिव मैटर्स लेस टू गॉड देन द स्पिरिट इन विच आई गिव इट, व्हाट डज माय करंट गिविंग हैबिट्स रिवील अबाउट द स्टेट ऑफ माय हार्ट। हमने अभी अपने चर्च के अंदर एक प्रैक्टिस की है और हमने देखा जी कि हमारे चर्च में कितने लोग हैं जो मंथली दयानतदारी के साथ अपनी मेंबरशिप लेते हैं। याद रखिएगा, अक्सर सवाल लोग पूछते हैं जी कि आज भी मुझे एक इंग्लैंड से कॉल आई सुबह, जब मैं इंग्लैंड, चूंकि नेक्स्ट महीने मैंने जाना है कॉन्फ्रेंस बोलने वहां पर, तो मुझे लोगों ने रिक्वेस्ट की जी इस टॉपिक पर जरूर बोलिएगा आप। तो उसमें से एक ये भी था, लोगों का चर्च के साथ रवैया कैसा है। यहां पर लोगों ने अपने अपने बैकग्राउंड में अपने अपने उन्होंने पॉकेट्स रखी हुई हैं। पॉकेट से मुराद है दे हैव ऑलवेज बैकअप प्लान। बैकअप प्लान क्या है, अगर उनके पास एक मॉर्निंग का बैकअप प्लान है, वो मॉर्निंग में कहीं और एंगेज होंगे। उसके बाद उनके पास एक लोकल देसी प्लान है, वो उसके अंदर एंगेज होंगे। उसके बाद एक और बैकग्राउंड में 3-4 चर्चियां, 3-4 पादरी वो भी पॉकेट में रखे हुए होते हैं। रिजल्ट क्या होता है, आप किसी के साथ वफादार नहीं होते। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, 2 कश्तियों का सवार, 2 मालिकों के नौकर, 2-3 कलीसियाओं के मेंबर। जब आप किसी एक चर्च के साथ भी सीरियस नहीं है, यू विल नॉट बी सीरियस विद गॉड एनीमोर। किसी तरफ लग जाए, मॉर्निंग में लग जाएं, शाम में लग जाएं, बट बी फेथफुल विद द वन चर्च। जब आप चर्च के मेंबर बनते हैं तो बी फेथफुल विद द चर्च मिशन, विद द चर्च मिनिस्ट्री एंड विद द चर्च पास्ट। अपने बैकअप में प्लान ना रखें। अगर आप वफादार नहीं है, देन डोंट कम। अपने सिर्फ सोशलाइजेशन के लिए ना आए, अपना सिर्फ सोशल सर्कल बनाने के लिए ना आए। ट्राई टू बी ऑनेस्ट विद गॉड्स वर्ड एंड विद गॉड्स पीपल। सो यहां पर क्या है जी, वेयर इज आवर हार्ट। नंबर 2, पौलुस रसूल यहां जो दूसरे प्रिंसिपल को बता रहे हैं जी, ओवरकमिंग द स्पिरिट ऑफ स्कार्सिटी, यानी जो हमारे घरानों में जो ब्लेसिंग नहीं है। व्हाई ऑलवेज इंडियन पाकिस्तानी चर्च आर पुअर एंड व्हाई दे आर ऑलवेज इन द नीड ऑफ के जी हमारे पास कुछ भी नहीं, हमारे बजट ऑलवेज क्यों लो रहते हैं। अगर 30 मेंबर है, मैं अपने चर्च की मिसाल देता हूं, सिर्फ 15 या 10 मेंबर होंगे जो मंथली वफादारी के साथ मेंबरशिप देते होंगे। उनमें सिर्फ कुछ ऐसे हैं जो पूरी नहीं देते। ओके, वी कैन अंडरस्टैंड, आप नहीं दे सकते, आप बाकी सारे काम कर सकते हैं, आप छुट्टियां भी मना सकते हैं, आप घर के किराए भी दे सकते हैं, मॉर्गेज भी दे सकते हैं, आप लोग पार्टियां भी कर सकते हैं, आप लोग सारा कुछ कर सकते हैं, लेकिन चर्च में आप नहीं दे सकते। व्हाई? बिकॉज आवर हार्ट इज नॉट अलाइन विद गॉड्स कमांड एंड विद द चर्च वी आर एंजॉयिंग द कंपनी। सो पौलुस रसूल कहते हैं जी कि अगर हम अपने कमी पर काबू पाना चाहते हैं तो फिर अपने हार्ट, अपने दिल पर गौर करें कि आप चर्च के साथ, कलीसिया के साथ कितने वफादार हैं। ओके जी। एंड देन
पौलुस रसूल यहां पर जो तीसरी बात बताते हैं वो है जी, जो खुशी और शादमानी है, दिस इज आवर स्पिरिचुअल मैट्रिक सिस्टम है, जहां से हम नाप सकते हैं कि जब मैं चर्च में आता हूं, जब मैं खुदा को रहता हूं, क्या मेरे दिल में खुशी आती है, या मैं ग्रज फील करता हूं, या मेरे अंदर बुड़बुड़ाहट आ जाती है, या मैं कभी पार्किंग में खड़े होकर कभी फोन पे या कभी और किसी के साथ बातचीत करना चाहता हूं, जी चर्च वाले क्या कर रहे हैं, जी चर्च में क्यों दे रहे हैं, जी हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, वैसा क्यों कर रहे हैं। इफ यू हैव सो मेनी प्रॉब्लम्स माय डियर, व्हाई आर यू कमिंग देन? गो एंड रिलैक्स एंड चिल। चर्च में जो लोग वफादारी से आ रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं, उनको करने दें। डोंट ब्रिंग द स्मेल ऑफ योर एनवायरमेंट इन द वर्शिप कम्युनिटी। सो मेरे अजीज पौलुस कहते हैं जी कि स्पिरिचुअल मैट्रिक, द जॉय, जब हमारे दिलों में खुशी आती है, और दैट रिफ्लेक्ट आवर जॉयफुल गिवर, खुदा खुशी से देने वाले को अजीज रखता है। तो रिफ्लेक्शन सवाल जो है वो क्या है? When was the last time giving felt genuinely thrilling or joyful to me? जब आपने लास्ट टाइम, चाहे $100, $200, $300 जब आपने चर्च में दिया था, क्या आपका दिल खुशी से भर गया था, या आपने अपने दिल में बुड़बुड़ाहट शुरू कर दिया कि एक और खर्चा सामने पे आ गया है? डोंट डू दैट, डोंट डू दैट। अगर आपके दिल में जॉय नहीं आता, खुदावंद की शादमानी नहीं आती, मेरे जीजो, डोंट वेस्ट योर मनी। खुदा के साथ इस तरह का खिलवाड़ ना करें। डोंट गिव, अगर आपका दिल नहीं है तो डोंट गिव इट। कोई भी आपसे नहीं पूछेगा। एंड हाउ कैन आई कल्टिवेट द फीलिंग मोर कंसिस्टेंटली? आप हमेशा बुड़बुड़ाहट का शिकार रहते हैं या खुशी का शिकार रहते हैं? आप शादमानी के साथ देते हैं, या आप उसके बाद मंजी मीटिंग करनी है और उसको कॉल कर, उसको ये करो, उसके साथ खड़ा, उसके साथ खड़ा हो, एंड देन यू स्टार्ट मर्मरिंग एंड ग्रम्बलिंग अबाउट द चर्च फाइनेंसेस। दूसरी जो कोटेशन इस्तस्ना की किताब में से कोट की गई, वो खुदावन यीशु मसीह ने डायरेक्ट कोटेशन दी है जी। दैट इज इन टू रेफरेंसेस, मत्ती की इंजील 26वें बाब की 11वीं आयत है, और मरकज की इंजील 14वें बाब की 7वीं आयत है। मैं आपके सामने मरकज 14:7 रखना चाहता हूँ जी। मत्ती की इंजील 26 भी आप देख सकते हैं, लेकिन मैं मरकज की इंजील और उसका जो 14वां बाब है वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। खुदावन यीशु मसीह ने डायरेक्ट कोटेशन दी है इस तस्ना की किताब में से। 14वें बाब की बड़ी मशहूर स्टोरी है जी। अगर आप देखें, तीसरी आयत से लिखा हुआ है, मार्क, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मार्क चैप्टर 14 वर्स 3 ऑनवर्ड लिखा हुआ है, जब वो बैतनिया में शमाउन कोड़ी के घर में खाना खाने बैठा था, तो एक औरत, अननेम वुमन है, जटामासी का बेशकीमत खालिस इत्र संगे मरमर के इत्रदान में लाई और इत्रदान तोड़ दिया उसने। इत्र सारे का सारा उसके सर पर क्या कर दिया? डाल दिया। मगर बाज, जिस तरह हमारे कलीसियाओं में होता है, हमारे कम्युनिटी में होता है, बाज अपने दिल में हार्ट आ गया नहीं, यहाँ पर अगेन हार्ट इज देयर, अपने दिल में खफा होकर कहने लगे, ये इत्र किस लिए जाया किया गया है? सो सैड। ये इत्र क्यों जाया कर दिया गया है? कैलकुलेशन सुनिएगा उनकी। क्योंकि ये इत्र 300 दिनार से ज्यादा को बिक कर गरीबों को दिया जा सकता था, और वो उस औरत को, अननेम्ड वुमन को, जिसकी लेविश वर्शिप ने उसको मजबूर कर दिया कि वो अपनी मोहब्बत का इजहार इस तरह करे कि अपना जो खालिस इत्र है, पूरे साल की सैलरी है, वो तोड़ के और यस्सु के सर पर डाल। यीशु ने कहा उसे छोड़ दो, उसे क्यों दिक करते हो? उसने मेरे साथ भलाई की है। क्योंकि नाउ यीशु मसीह जी इस्तस्ना की किताब 15वें बाब की 11वीं आयत डायरेक्ट कोट करने लगे हैं, क्योंकि गरीब गुरबा तो हमेशा तुम्हारे पास हैं, जब चाहो उनके साथ नेकी कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारे पास हमेशा ना रहूंगा। There's a debate over social gospel and evangelistic gospel जी, कि आप holistic gospel पेश करते हैं या आप सिर्फ social work करते हैं, या आप क्या करते हैं? मेरे जीजो, this reference is giving a preference over Jesus body over social work. तो खुदावंद यीशु मसीह ने लोगों को डांटा कि तुम्हारे दिल खालिस नहीं है, यू आर ऑन रॉन्ग ग्राउंड। कंक्लूजन क्या है जी? इसकी पर्सनल एप्लीकेशन क्या है? मरकज की इंजील का जब रेफरेंस है, जब यीशु ने ये कहा कि गरीब गुरबा तो हमेशा तुम्हारे पास है, जब चाहो उनके साथ नेकी कर सकते, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, क्योंकि जो कुछ कर सकी उसने किया, जो कुछ वो कर सकी किया। अनपैक करते हैं इसको जी। नंबर 1,
औरत का जो डिवोशन है दैट इज एक्स्ट्रा वैकेंट। अब देखेंगे दो औरतें हैं, औरतें वैसी बड़ी मतलब दे आर ऑलवेज 10 steps ahead from men's in the gospel, और आज की दुनिया में भी वुमेन्स आर ऑलवेज मोर सेंसिटिव। आप देखेंगे कि सामरी औरत, ठीक है, आपको मैं 2 jars मैं आपके सामने रखने लगा हूं। वो औरत जिस मर्तबान, जिस बर्तन में जो भी उसके पास मटका था जिसमें पानी भरने आई थी, जब उसका सामना यीशु से हुआ है, शी लेफ्ट दैट जार, उसने वो वहीं छोड़ा है। जो उसका सोर्स था उसकी नरिशमेंट का, उसकी ग्रोथ का और उसको सस्टेनेबिलिटी का, वो बर्तन उसने यीशु की मोहब्बत में, उसका जब हार्ट चेंज हुआ है, शी लेफ्ट दैट एंड शी रैन टू द विलेज। ये जो दूसरी औरत है, वो पहली सामरी औरत ने अपना बर्तन वहीं छोड़ दिया, इसने तोड़ ही दिया। अब इसके लेवल पर आकर जरा सोचें आप। नो बडी इज देयर टू कंपेयर दिस अननेम वुमेन कंसर्निंग द वर्शिप एंड द लैविश गिविंग इन जीसस मिनिस्ट्री एंड टू जीसस बॉडी। क्या लिखा है जी? एक्सट्रावेगेंट वर्सेस कैलकुलेटेड डिवोशन। इतने लोग $20-25 दे के परसेंट जी पैसे लाए थे पूरे साल महीने चाह के वो लोग चर्च में भी आएंगे, पार्टियां भी करेंगे, रिलेशनशिप भी बनाएंगे, और जनाब उसके बाद सोशल अपना इन्फ्लुएंस भी तैयार करेंगे, अपने आप को चर्च का इन्फ्लुएंशियल पर्सन भी जाहिर करेंगे। लेकिन जहां पर चर्च के साथ वफादारी की, चर्च के साथ सेक्रीफाइस की बारी आएगी, दे ऑलवेज वैनिश। वहां पर वो सवाल खड़ा कर देंगे। इस औरत ने तोड़ दिया अपना जार तोड़ दिया, वो जटा मासी का संगे मरमर का तक तोड़ दिया। सो मेरे जीतो, दिस वुमन डज नॉट मेजर आउट ऑफ फ्यू ड्रॉप्स। वो के 20, 25, 30, 200, $300 काउंट नहीं कर रही थी। शी वॉज नॉट काउंटिंग अ फ्यू ड्रॉप्स, शी ब्रेक्स द जार, गिविंग एवरीथिंग। हर वर्शिप इज कॉस्टली और पब्लिक है एंड अनरिजर्व है। मैं और आप मैच नहीं कर सकते इस औरत के डिवोशन को। इन कंट्रास्ट द बायस्टैंडर जो है वो क्या कर रहे हैं? जो बायस्टैंडर हैं, जो सिर्फ सोशलाइजेशन के लिए आते हैं, जिनको सिर्फ शाम को, संडे की शाम को खाना खाना है, पार्टियां करनी है, बख्तूनियां करनी है, एक दूसरे से मिलना है, गपशप लानी है, हंसना खेलना है, गॉन। Bystanders view the act through the lens of cold utility and calculation. उनकी कैलकुलेशन शुरू हो गई है जी। They assign a monetary value to fragrance. हो जो खुशबू फैली है, जो यीशु मसीह के बदन पर आई है मेरे अजीजों, जिससे पूरा घर महक गया है, जिससे जहां जहां यीशु मसीह अगले 4-5 दिन में जाएंगे, वो खुशबू जो फैलेगी, जो एनवायरमेंट क्रिएट किया है, लोग उसको पैसे से तोड़ना शुरू हो गए। 300 दिनार, 300 दिनार, एक पूरे साल की $60,000। ओहो। Samaritan woman left the jar while the unnamed woman broke the jar. So मेरे जीजो सवाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जो वो ये है, डू वी गिव गॉड आवर लेफ्टओवर्स? बचा खुचा, जाया किया हुआ, यूज की हुई चीजें, लेफ्ट ओवर टाइम, एनर्जी, रिसोर्सेज खुदा को देते हैं, और आर वी विलिंग टू ऑफर आवर मोस्ट प्रेशियस एसेट्स इन एक्ट्स ऑफ एक्स्ट्रावेगेंट लव? ये सवाल है जी इस महीने में आपके साथ। नंबर 2, दे वर ट्रैप्ड और फॉल्स पाइटी, गलत, वो एक मिसजज्ड रूहानियत में, मजहबियत में फंसे हुए हैं। फॉल्स पाइटी है उनकी। वो क्या है? द क्रिटिक्स, जो एतराज करने वाले, क्या कह रहे हैं? यूज द कॉज ऑफ अ पुअर एज अ वेपन टू शेम द वुमेन। उनको गरीब गुरबा की फिक्र नहीं है, याद रखिएगा। उन्होंने सिर्फ क्या करना है? क्रिटिसाइज करना है। कुछ लोग हैं इनके अंदर स्पिरिट ऐसी होती है, उनको इससे गर्द नहीं है चर्च क्या कर रहा है, पादरी क्या कर रहा है, मिशन क्या हो रहा है, काम क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। उनके अंदर हमेशा क्रिटिसिज्म की रूह रहेगी। जिथे बोगे और रोना ही रोंदे होंगे। कोई अपने शौहर का रोना रोंदी होगी, कोई अपनी बीवी का रोना रोंदा होगा, कोई अपने काम का रोना रोंदा होगा, कोई अपना बच्चों का रोना, मतलब उनके अंदर हमेशा क्रिटिक्स की रूह रहेगी। वो हमेशा मरमरिंग में बड़बड़ाहट का शिकार रहेंगे। बचे ऐसे लोगों से, बचे ऐसे लोगों से। These are the people, those who bring the shame to the woman. Jesus responds, the poor will always have with you. इस्तिस्ना डिट्रॉनमी 15:11 आयत यीशु ने कोड करती है यहाँ पर। उनको क्या, क्यों यीशु ने कोड की है वाली आयत यहाँ पर? Remind them that while opportunities for charity are continuous,
हमारे बहुत सारे, मैं इंडिया पाकिस्तान का, हमारे जितने लोग हैं, वी ऑल नो कि हमने पिछले भी पालने होंगे ने, पिछले बिल देने, कोई भरा ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਡਿਆ, कोई ਭੈਣ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਡਿਆ, कोई अपना माँ बाप को पाल रहा है, कोई चाचे ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਡਿਆ, कोई मामे, मतलब एवरीबडी वहाँ लोग के बैठे लोगों की चांदी लगी हुई है, उन्होंने फ्री ਦੇ ਡਾਲਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, और उतों फिर वो अनथैंकफुल लोग हैं, ऊपर से ग्रेटिट्यूड भी नहीं है। तो यहां पर क्या है, चैरिटी आर कंटिन्यूस, आपके लिए चैरिटी के बड़े दरवाजे खुलेंगे। हिज फिजिकल प्रेजेंस ऑन अर्थ इज टेम्पररी। चर्च, कलीसिया यीशु मसीह का बदन होते हुए जमीन पर मौजूद है। चर्च एज द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, हैंड्स एंड आईज एंड फीट ऑफ जीसस क्राइस्ट। अगर हम यीशु मसीह के बदन के साथ वफादार नहीं है, अपने लोकल कम्युनिटी, अपने भाइयों के साथ जिनके साथ हम उठते बैठते हैं, खाते पीते हैं, अपने कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में जिनके साथ हम कलीसिया के साथ इंगेज है मेरे जीजो, तो फिर हम कहीं और भी नहीं हो सकते। द क्रिटिक सडन कंसर्न फॉर द पुअर, उन्होंने मास्क चढ़ाया है फॉर द लैक ऑफ लव फॉर जीसस, क्योंकि वो औरत अपना सारा कुछ तोड़ने और यीशु मसीह पर उंडेलने के बाद उन सब को शर्मिंदा कर गई है। That's how people see. That's how they were criticizing her, by covering their mask under the charity. यीशु मसीह ने उनको अनमास्क कर दिया है, यीशु मसीह ने उनके चेहरों से नकाब उतार दिया है कि तुम झूठे लोग हो, तुम हिपोक्रेट हो। So रिफ्लेक्शन क्या जी मेरे चीजों, इज आवर क्रिटिसिज्म, हमारा चाहे कलीसिया पर है, पादरी पर है, चंदे पर है, जिस पर भी हमारा क्रिटिसिज्म है, अपने अपने घर के खर्च, जहां भी आपके अंदर अगर क्रिटिसिज्म की स्पिरिट है, इज आवर क्रिटिसिज्म ऑफ हाउ अदर express their faith actually a cover up for our own lack of spiritual intimacy? चूंकि मेरी अपनी खुदा के साथ डिवेलिंग प्रेजेंस में नहीं है, इसलिए जिनकी है उनको गंदा करो, उनको क्रिटिसाइज करो और उनको बातें सुनाओ, क्योंकि मेरी अपनी तो है नहीं, ना मेरी अपने घर में है, ना मेरी अपने रिश्तेदारों में है, ना मेरी अपने कलीसिया में है, ना मेरी खुदा के साथ है। चूंकि मेरी खुदा के साथ इंटीमेसी नहीं है, मेरी दुनिया में किसी के साथ भी नहीं है, और जिनकी है उनको बैक बाइटिंग। सो मेरे जीजो, दीज आर द क्वेश्चंस टुडे जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। एंड देन व्हाट इज द फाइनल थॉट? हमारी हार्ट, हमारा दिल जब वो खुदा के साथ ताल्लुकात में संजीदा होता है, फिर हमारे हाथ खुलते हैं खुदावन के लिए। एंड व्हेन आवर हैंड्स आर ओपन, देन हेवंस ओपन, फिर आसमान खुलता है मेरे जीजो। मलाकी नबी की किताब, जो आखिरी किताब है पुराने अहदनामे की, वहां पर एक बड़ी अच्छी खूबसूरत आयत है कि जिन लोगों की खुदा के साथ डिवेलिंग थी, जो खुदा की हजूरी में रहते थे, खुदा के वफादार थे, खुदा के काम में मशगूल रहते थे, उन्होंने फरियाद की खुदा के सामने, दे क्राइड आउट, और लिखा हुआ है कि आसमान पर उनके लिए यादगार का दफ्तर खुला गया। गॉड ओपन द रैकेट ऑफ दीज पीपल, जो खुदा के साथ वफादार थे। ये जो अननेम औरत है, इसका रिवार्ड क्या आया है? देखिएगा जी, 9वीं आयत क्या कह रही है मरकज की इंजील में, लिखा हुआ है, मैं तुमसे सच कहता हूं, तमाम दुनिया में जहां कहीं अंजील की मुनादी की जाएगी, आज 2100 सालों के बाद मैं टेक्नोलॉजी के जरिए से आर्टिफिशियल रिसर्च और दुनिया भर में जो भी लोग देखेंगे उनको कलाम सुना रहा हूं, और इस औरत की यादगारी, वन एक्स्ट्रावेगेंट लव टुवर्ड द बॉडी ऑफ क्राइस्ट इज ओपन रैकेट फॉर इटर्निटी। कमाल कर गई औरत, जीत गई, शी वॉन। तमाम दुनिया में जहां कहीं अंजील की मुनादी की जाएगी, जो इसने किया इसकी यादगारी में कहा जाएगा, आहा, नो अदर कैरेक्टर इन गॉड्स sacrificial love expressed by this unnamed woman. So मेरे जीजो, the culture of the time marginalized women, and the Rome actively rejected her. Yet Jesus elevated her actions among the entire gathering. He declares that wherever the gospel is preached, her story will be told. She recognized Jesus' impending death and prepared his body for burial when the disciples were still in denial. तो आपके लिए रिफ्लेक्टिव क्वेश्चन छोड़ा जा रहा हूं जी। आर वी सीकिंग द टेम्पररी अप्रूवल्स ऑफ आवर पीयर्स? उसको खुश करने, पीपल प्लीज करना, उसको खुश करना, उन्हें भी खुश कर लो, उन्हें भी खुश कर लो, खुदा होंदा नहीं होंदा? और आर वी लिविंग फॉर द इटर्नल वैलिडेशन ऑफ क्राइस्ट? गॉड कीप द record. ये बांध कर ले जाए ये बात, गॉड कीप द record of our heart, our hands and our attitude.
कंक्लूजन में मेरे चीज़ों, आज सुबह जब मैं सरमन तैयार करने के बाद आई वाज वाचिंग अ मूवी फॉलन, तो मूवी का जो टाइटल था उसने मेरी तवज्जो खींच ली, फॉलन। और जो मैं सोच रहा था वही हुआ। फॉलन से मुराद फॉलन एंजल्स था। 96 90s की मूवी है जी, आपको मौका मिले नेटफ्लिक्स पे देखिएगा। जिसमें अजाजील, जो फॉलन एंजल, जो 200 के करीब फरिश्ते आसमान से गिराए गए थे, वॉचर्स जो थे, आर्च एंजल्स या वॉचर्स जिनको कहा जाता है, उनके अंदर में दरमियान एक फरिश्ता था अजाजील। और आप देखेंगे पुराने अहद में अजाजील का जिक्र भी है। जब यौम कफारे का दिन आता था, एक बकरा अजाजील के लिए भेज दिया जाता था। इस मूवी के अंदर मॉडर्नाइज जो उन्होंने किया है, इसमें अजाजील का जो स्पिरिट है, जो फरिश्ता है जो गिराया गया था, वो लोगों के जरिए काम करता है। और जो उसका काम करने का तरीका देखिए क्या है। इस मूवी के अंदर बड़ा अच्छा डिपिक्ट किया उन्होंने कि वो चूंकि अब वो तो डीमन है। अब वो डीमन जो है वो उसको फिजिकल जो है वो चाहिए, होस्ट बॉडी चाहिए, फिजिकल होस्ट बॉडी चाहिए। सो अजाजील क्या करता था कि वो जिस भी बॉडी के अंदर जाता था और जो वो कहना या करना चाहता, वो शख्स जो होता था वो किसी दूसरे को टच करता, अजाजील उस बॉडी कनेक्शन के जरिए उसके अंदर तीसरे को, चौथे को, मतलब वो यूं अपने जो होस्ट बॉडी से उनको वो चेंज करता रहता था। अल्टीमेटली जो इस फिल्म का हीरो होता है, उसको पता चल जाता है जी कि इन जो जो लोग मारे जा रहे हैं, और जो वो खुद जो जमीन के अंदर जो वो बिगाड़ पैदा करना चाह रहा है, जो केओस क्रिएट करना चाह रहा है, उसके लिए उसको उसकी होस्ट बॉडी को खत्म करना बड़ा जरूरी है। सो वो अपने आप को पेश करता है कि वो उसको ऐसी जगह ले जाकर मारते हैं, अपने आप को खत्म करता है जहां पर कोई दूसरा इंसान नहीं होता, ताकि उसकी बॉडी के अंदर जब वो उसकी जान, जब वो बंदा मरे, उसकी बॉडी के बाद उसको कोई दूसरा होस्ट बॉडी ना मिल सके। सो अजाजील गो, दिस इज अ वॉर। हम भी वी ऑल नो, जब तक कलीसिया जमीन पर है, जब तक यीशु से दोबारा नहीं आते, हमारी लड़ाई जारी रहेगी, तारीकी की कुव्वतों के खिलाफ और खुदा के लोगों के खिलाफ। चर्च में लोगों के खिलाफ, चर्च के बाहर लोगों के खिलाफ, चर्च के अंदर मास्क पहने हुए हिपोक्रेट लोगों के खिलाफ, और प्योर हार्टेड वर्शिपर के दरमियान ये टसल जारी रहेगी। सवाल ये होता है मेरे अजीजों, विच साइड आर वी with the church, or are we with the power of darkness? Are we become a host or channel of Azazel, the spirit of Azazel, या फिर हम अपने आप को उस साइकिल को, जो विशियस साइकिल है, आर वी ब्रेकिंग दैट? और अगर आप अपने घरों के अंदर फाइनेंशियल बरकत, अगर आप अपने घरों के अंदर खुदा के प्रोमिसेस को, अगर आप अपने घरों के अंदर इत्मीनान को, पीस को, फाइनेंशियल हेल्थ को अगर आप चाहते हैं मेरे जीजो, दीज आर द प्रिंसिपल गिवन बाय गॉड स्पिरिट 5,000 years ago to the Jewish nation, and then transferred through Jesus Christ to the New Testament church. हम अगर अब्राहम की बरकत का दावा तो करते हैं, स्पिरिचुअल बरकत का, बट आर वी फॉलोइंग द फुल अकाउंट एंड द फुल कमांडमेंट ऑफ गॉड कंसर्निंग आवर फाइनेंशियल हेल्थ? आज मैं आपके सामने चैलेंज रखना चाहता हूं जी। जून का महीना है, हमारे चर्च का बजट भी आ रहा है, हमारे चर्च के खर्चे भी बढ़ गए हैं, पूरी दुनिया के वैसे तो बढ़ गए हैं, लेकिन गॉड्स प्रॉमिसेस देयर, एज आई मेंशन अर्लियर, इन द फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड वन थिंग इज अनचेंजेबल, विच इज गॉड्स कमांड एंड गॉड्स वर्ड। खुदावंद अपने वादा पर आज भी खड़ा हुआ है। खुदावंद की इकोनॉमी दुनिया की इकोनॉमी की तरह काम नहीं करती। अपने आप को खुदा की इकोनॉमी के साथ जोड़कर देखिए, एंड सी द मिरेकल्स व्हिच गॉड हैज गिवन यू। इस आखिरी स्टेटमेंट के साथ खत्म करूंगा। हमने ज़बूर पढ़ा आज, जो रिस्पॉन्सिव रीडिंग की गई ज़बूर 4 की, और आप देखेंगे उसकी जो आखिरी आयत पढ़ी गई है, डॉक्टर कैसल ने जो हमें लीड किया है, वो क्या था जी, कि तूने मेरे दिल को, 7वीं आयत पढ़ने लगा हूं जी, तूने मेरे दिल को उससे ज्यादा खुशी बख्शी है जो उनको गल्ला और मैं की फरावानी से होती थी। मैं सलामती से लेट जाऊंगा और सो रहूंगा, क्योंकि ए खुदावंद, फक्त तू ही मुझे